हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयन तोमर एंड आई होप आप सबने पिछले लेक्चर का सारी रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाकर पहले स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देख लें, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे और उसी के साथ आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आपके कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो सके। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विदाउट एनी डिले एंड आई थिंक वी हैव लर्नड 18 रूल्स and our last rule was insist on. We have already done a good revision of our starting 10 rules, so in our today lecture we will only see our last 8 rules that we have learnt in the last days. And our first rule is use of font of. Whenever we try to showcase some likable habit, there we use of this rule. And our next rule is use of sick of. Whenever somebody feel unwell or somebody feel irritating or whenever somebody feel disturbing, there we use of this rule. And our next rule is afraid of. Whenever somebody feels that he has some dare of something or someone, there we use of this rule. That somebody is fearing of something, there we use of this rule. And our next rule is dare to. Whenever somebody try to showcase some daring thing, there we use of this rule. That he has dared to do these things and we have not. And our next rule is should and must. Whenever we try to give some advice or suggestion to someone or somebody, there we use of this rule. And our next rule is how to. Whenever somebody asks a question to you that do you know how to do this thing, then you reply that yes I know. Then he asks how do you know that how to do this thing, there we use of this rule. That how do you know that, how can we do this thing, that where have you learned this thing, then you reply that I have learned this thing from there or here. There we use of this rule. And our next rule is bound to. Whenever you have boundaries and limitation or when you have set boundary, there we use of this rule. That you can't do this thing, you have a set boundary, you can't cross of this boundary. And our next rule is insist on. Whenever we try to give some polite request or when somebody put pressure on the words, there we use of this rule. Now let's see some example from each rule. And our first example is आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स? क्या तुम आर्टिकल पढ़ने के शौकीन हो? इफ यू रिप्लाई दैट यस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, कि हाँ मैं आर्टिकल्स पढ़ने का शौकीन हूँ, बट इफ यू डिनाई कि नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, कि नहीं मैं आर्टिकल्स पढ़ने का शौकीन नहीं हो, देन वी विल आस्क व्हाई आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, कि तुम आर्टिकल पढ़ने के शौकीन क्यों नहीं हो? देन यू विल रिप्लाई बिकॉज आई डोंट लाइक टू रीड आर्टिकल्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ने पसंद नहीं करता इसलिए मैं उन्हें पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, या फिर मुझे उन्हें पढ़ने का शौक नहीं है। देन वी विल कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आर यू सिक ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल, कि क्या तुम आर्टिकल पढ़ते हुए दुखी हो रहे हो या फिर तुम उन्हें पढ़ने से दुखी हो? देन यू विल राइट यस आई एम सिक ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, कि हाँ मैं आर्टिकल पढ़ने से दुखी हूँ। बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो आई एम नॉट सिक ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, कि नहीं मैं आर्टिकल पढ़ने से दुखी नहीं हूँ। देन यू विल आस्क Why are you sick of reading an articles? कि तुम आर्टिकल पढ़ने से दुखी क्यों हो? Then you will reply because I don't have habit of this, that's why I am sick of reading an articles, क्योंकि मुझे इस चीज की आदत नहीं है इसलिए मैं आर्टिकल पढ़ने से दुखी या फिर परेशान हूँ। Then you will ask next question to you that are you afraid of reading an articles, कि क्या तुम आर्टिकल पढ़ने से डरते हो या फिर तुम्हें आर्टिकल पढ़ने से डर है? Then you will reply that yes I am afraid of reading an articles, कि हाँ मुझे आर्टिकल पढ़ने से डर लगता है। बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, कि नहीं मुझे आर्टिकल पढ़ने से डर नहीं लगता है। देन वी विल आस्क दैट व्हाई आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स, कि नहीं तुम्हें आर्टिकल पढ़ने से डर क्यों नहीं लगता है? देन यू रिप्लाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रीडिंग एन आर्टिकल्स बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू रीड एन आर्टिकल्स, क्योंकि मुझे आदत है आर्टिकल पढ़ने की इसलिए मुझे उन्हें पढ़ने से डर नहीं लगता है। Then we will ask next question to you that do you dare to read an articles, कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम आर्टिकल्स पढ़ सको? Then you will reply that yes I have dare to read an articles, कि हाँ मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं आर्टिकल पढ़ सकूं। But if you deny then you will reply no I don't have dare to read an articles, कि नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आर्टिकल पढ़ सकूं। Then you will reply that why do you not have dare टू रीड एन आर्टिकल्स, कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम आर्टिकल पढ़ सको? देन यू विल रिप्लाई बिकॉज आई डोंट लाइक टू रीड एन आर्टिकल्स एंड आई डोंट हैव हैबिट ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू रीड एन आर्टिकल्स। मुझे आर्टिकल पढ़ने की हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इस चीज की आदत नहीं है और मैं ये चीज करना पसंद नहीं करता। देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज
शुड यू रीड एन आर्टिकल्स, कि क्या तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, देन यू विल रिप्लाई दैट यस वी मस्ट रीड एन आर्टिकल्स, कि हाँ हमें आर्टिकल्स पढ़ने ही चाहिए। बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो वी शुड नॉट रीड एन आर्टिकल्स, कि नहीं हमें आर्टिकल्स नहीं पढ़ने चाहिए। देन यू विल आस्क व्हाई शुड वी नॉट रीड एन आर्टिकल्स, कि हमें आर्टिकल्स क्यों नहीं पढ़ने चाहिए। देन यू विल रिप्लाई we should not read an articles because we should focus on our study and we should continue our revision part, क्योंकि हमें अपना रिवीजन पार्ट कंटिन्यू करना चाहिए और अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, इसलिए हमें आर्टिकल्स नहीं पढ़ने चाहिए। देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि क्या तुम्हें पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। इफ यू रिप्लाई देन यू विल से दैट यस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि हाँ मुझे पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि नहीं मुझे नहीं पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। बट इफ यू अग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि हाँ मुझे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। देन ही विल आस्क हाउ डू यू नो दैट हाउ टू ड्राइव अ कार, कि तुम्हें कैसे पता है कि गाड़ी कैसे चलाती है। देन यू विल रिप्लाई दैट आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बिकॉज आई हैव लर्नड इट बिफोर, क्योंकि मैंने ये चीज पहले सीखी हुई है इसलिए मुझे पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। देन यू विल लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आर यू बाउंड टू स्टडी प्रॉपरली, कि क्या तुम इस चीज को करने के बाद हो, कि क्या तुम्हारे पास लिमिटेशन है कि क्या तुम्हें स्टडी अच्छे से करनी है। इफ यू रिप्लाई दैट यस आई एम बाउंड टू स्टडी प्रॉपरली, कि हाँ मैं पढ़ाई अच्छे से करने का बाध्य हूँ। बट इफ यू डिनाई देन यू रिप्लाई नो आई एम नॉट बाउंड टू स्टडी प्रॉपरली, कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ाई करने का बाध्य नहीं हूँ। देन यू विल आस्क व्हाई आर यू नॉट बाउंड टू स्टडी प्रॉपरली, मैं अच्छे से स्टडी करने में बाध्य इसलिए नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू स्टडी और आई डोंट हैव हैबिट ऑफ दिस, क्योंकि मुझे इस चीज करने की आदत नहीं है, या फिर मुझे इस चीज को करना पसंद नहीं है इसलिए मैं इस चीज का बाध्य नहीं हूँ, या फिर इस चीज की लिमिटेशन मेरे ऊपर नहीं है। एंड आंसर कैन बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, यू कैन कस्टमाइज होल द आंसर, आप अपने हिसाब से आंसर कस्टमाइज कर सकते हैं और आपका आंसर कोई भी हो सकता है। एंड आवर लास्ट होल वाज दैट यू हैव लर्नड यस्टरडे दैट डू यू इंसिस्ट योर फ्रेंड्स टू सेव योर टाइम, कि क्या तुम अपने दोस्तों को इंसिस्ट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो कि वो तुम्हारा समय बर्बाद ना करे या फिर तुम्हारा समय बचाए। इफ यू अग्री देन यू रिप्लाई दैट यस आई इंसिस्ट ऑन माय फ्रेंड्स टू सेव माय टाइम, कि हाँ मैं अपने दोस्तों को इंसिस्ट करता हूँ कि वो मेरा समय बचाए। बट इफ यू डिनाई देन यू रिप्लाई नो आई डोंट इंसिस्ट ऑन माय फ्रेंड्स टू सेव माय टाइम, कि नहीं मैं अपने दोस्तों को नहीं इंसिस्ट करता हूँ कि वो मेरा समय बचाए। देन वी विल आस्क व्हाई डू यू नॉट इंसिस्ट ऑन योर फ्रेंड्स टू सेव योर टाइम, कि तुम अपने दोस्तों को इंसिस्ट क्यों नहीं करते हो कि वो तुम्हारा समय बचाए। देन यू विल रिप्लाई कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि अपना समय बचा सकूं और अपना फिजूल टाइम बर्बाद ना करके अपने डिसीजन खुद ले सकूं। आई कैन टेक माई डिसीजन माई सेल्फ एंड वन मोर थिंग वट एवर डू यू वॉन्ट टू डू जस्ट कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू एक्शन and do practice again and again. And our today rule is kind and favorite. Whenever we try to showcase type of likes, there we use of this rule. Now let's see its question structure is that when somebody asks from you that do you watch movies, कि क्या तुम मूवीज देखते हो। If you reply that yes I watch movies, but if you deny that no I don't watch movies, कि नहीं मैं मूवीज नहीं देखता हूँ, then his next question will be if you say yes then he will ask that what kind of movies do you like to watch, कि तुम्हें कौन सी तरह की मूवी देखना पसंद है। then you reply that I like to watch action movies, कि मुझे एक्शन मूवीज देखना पसंद है। एंड देन ही विल आस्क विच इज योर फेवरेट एक्शन मूवी, कि तुम्हारी सबसे फेवरेट एक्शन मूवी कौन सी है। देन यू रिप्लाई दैट माय फेवरेट मूवीज Super 30 or it can be anything. As an example, somebody is asking from you that do you like to listen songs, कि क्या तुम्हें गाने सुनना पसंद है। If you deny that no I don't like to listen songs, कि नहीं मुझे गाना सुनना नहीं पसंद है। But if you agree then you will reply that
yes I like to listen songs कि हाँ मुझे गाने सुनना पसंद है. Then the next person will ask the question that what kind of songs do you like to listen कि तुम्हें किस तरह के गाने सुनना पसंद है. Then you will reply that I like to listen old songs कि मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है. And then he will ask the next question to you that which is your favorite old song कि तुम्हारा सबसे फेवरेट पुराना गाना कौन सा है. इट कैन बी एनीवन. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल दैट डू यू लाइक टू रीड बुक्स कि क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है. इफ यू डिनाई दैट नो आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स कि नहीं मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है. बट इफ यू अग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई लाइक टू रीड बुक्स कि हाँ मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. देन समबडी विल आस्क टू यू दैट व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक टू रीड और डू यू लाइक टू स्टडी कि तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना या फिर रीड करना पसंद है. दैट माई फेवरेट मैथमेटिक्स बुक बिलोंग्स टू आर डी शर्मा की मेरी फेवरेट बुक आर डी शर्मा को बिलोंग करती है. एंड आई थिंक यू लाइक दिस सेशन एंड आई होप यू विल डू रिवीजन of our whole the rules and our concept. So let's finish this lecture here and I'll meet you in the next session.